this is Sanya. Welcome to my YouTube channel Fluent Factory. In this video, you will learn about sentence completion questions, and these are one of the many question types you will encounter in IELTS reading test. Here in this video, you will learn everything about what these kind of questions are. Next, you will learn what skills you need to have to answer these questions in the right manner. Other than that, I have some important tips to share with you which you can use to answer these questions accurately and effectively. Next, we have step-by-step effective strategy for you to use which you can use in all of these questions and will make sure that you are answering your questions in a good way. Other than that, we have an example for you which I will be solving with you, and I'll be using the effective strategy which I have, and you can see how wonderfully it works. So let's move on to the first thing. First, we will get to know what sentence completion tasks actually are. So you must have encountered in your IELTS reading test, आपने देखा ही होगा, there are some type of questions in which there are 4 to 5 sentences are given to you and they have gaps in between. उनके बीच में gap होता है which you have to fill. So it's more like a fill in the blank question, and what you have to do is you have to fill the gap with the appropriate word, with the right word which makes the sentence complete and meaningful as well. तो हमने क्या करना है? We have to fill the gap टू मेक द सेंटेंस, उस सेंटेंस को मीनिंगफुल और कंप्लीट बनाने के लिए. और जो वो वर्ड है वेयर इट्स गोना कम फ्रॉम द पैसेज ओनली. यू गोना फाइंड इट फ्रॉम द पैसेज एंड आई विल लेट यू नो हाउ यू डू इट. So there are some instructions which are associated with these type of questions. So most importantly, you are given with the word count limit. That means आपको पहले से बताया जाएगा कि कितने वर्ड्स के साथ ये गैप आप फिल कर सकते हैं. देयर विल बी मैक्सिमम वर्ड लिमिट गिवन टू यू कि हाँ 2 वर्ड्स के साथ फिल करना है, 2 वर्ड्स और अ नंबर के साथ फिल करना है, मे बी 1 वर्ड ओनली. सो यू विल बी गिवन विद द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. Because what happens many times, your answer is correct, you are making the sentence complete and meaningful, but you are not confining to the word count limit, and that's why your answer is wrong. So you will be told the maximum number of words to write. You must only write words that are in the passage. Make sure you copy the spelling correctly. That means जो आप word लिखने वाले हैं, make sure that is from the passage only. You are not making it up yourself. You are not using the synonym of the word which should be there, or you should be using the same spelling as they are there in the passage only. Okay, and next, you don't need to change the words in the passage. जो passage में word दिए गए हैं, you don't need to change it and then write it down in your answers. No, just write it in the same manner as they are written in the passage, and you don't need to join words together. You should not be joining 2 words together to make it one or anyhow. So make sure you are not making these kind of mistakes in these easy questions. And if you write too many words or make a spelling mistake, your answer will be marked wrong. दैट मीन्स अगर आप वर्ड काउंट लिमिट को ध्यान में नहीं रखते हैं और जितने वर्ड्स में आपको आंसर करने के लिए बोला गया है आप उससे ज़्यादा ही वर्ड्स में आंसर कर रहे हैं, देन योर आंसर विल बी मार्क्ड रॉन्ग, एंड इफ़ योर स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, ऑब्वियसली इट्स गोना बी मार्क्ड रॉन्ग. Next, let's see a sample question. So this is a sample question you can see, and what you have to do first is you have to look at the instructions. You can easily see that they have written choose one word only from the passage for each answer. That means एक ही word का answer होगा हमारा, and that is gonna be from the passage only. आप passage में से ही उसके answer को ढूंढेंगे. Next, you can easily see they have written choose no more than 3 words. That means the limit is 3 words. Your answer can be 1 word, 2 word or 3 word. So you can choose
According to that, you can choose the answers from the passage according to the limit. So these are the examples. So this is the one thing for which you have to be very careful about. So if the question asks you to write two words and or a number, that means your answer may be one word or a number, two words or a number. So remember that number, if written as a word, is still counted as a number only. For example, if the answer is like 25 trees, that means 25 is a number over here and trees is a word. So you don't need to write full sentences or join words together, and you make sure you are complying to the instructions given in the questions very carefully, and make sure that you are not making the silly mistake which will cost you a mark. So let's see an example. You can clearly see the example in which they have given the instructions that choose no more than two words and or a number from the passage for each answer. That means in these blanks, in these gaps, you can fill the answer with a number and a word, maybe a word only, or maybe two words, or maybe two words and a number. So answer can be anything from these four options. Next, let's know what are the skills needed for answering sentence completion questions in IELTS reading test. And the skills are vocabulary and context, paraphrasing and scanning, grammar and elimination, reading comprehension. These four things are required to know and to learn to answer these type of questions. So let's see what's in there. First, the vocabulary and context. Vocabulary means you should know a range of words, a range of different words. आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग वर्ड्स की. You should know the synonyms, the antonyms to different words. That's what you should have a knowledge about. And understanding the context means you should know what is asked in the text, in the sentence, and how you can find it in the text. That means you should know how to find the right answer, how to locate the right answer in the text, and where to look for it. So let's read it. Understanding vocabulary and context means picking words that make sense in the passage. That means हम उन वर्ड्स को पिक करेंगे पैसेज में से जो जिनका मतलब बन रहा है उस सेंटेंस में. That means that can be used in your sentence and can match the overall meaning, और उसके overall meaning को match कर रहे हैं and are making the sentence complete and meaningful. It's about knowing the words. उन words को जानना, उन words को समझना और understand करना जो उस सेंटेंस के अंदर हम फिल कर सकते हैं और उसके सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं उनको यूज़ करके. सो knowing different words will actually help it, and knowing the context में किस बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में और टेक्स्ट के अंदर will really help you out to answer the question in a right manner. Next, let's see how vocabulary helps. Having a diverse and comprehensive vocabulary is crucial for understanding the meaning of words within the passage. That means अगर आपके पास diverse range of vocabulary है, so it is very important to understand the meaning of the words that are there in the passage and are in the sentences. So इससे हमें help मिलती है जो पूरा टेक्स्ट दे रखा है उसको समझने में. अगर आपकी vocabulary अच्छी है, it obviously helps a lot. Next is a wide range of vocabulary enables test takers to choose the most appropriate words to fill in the gaps. That means अगर आपकी vocabulary अच्छी है, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है कि आप जो सबसे right word है पैसेज के अंदर जो आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं, आप वो चूज़ कर पाते हैं और आपका आंसर सही होता है. Next, this skill involves knowing synonyms, antonyms, and understanding the nuances of the words to select the best fit option. That means आपकी vocabulary अच्छी है, इसका मतलब है आपको synonyms पता है, इस word के antonyms पता होंगे, and you know what kind of word is used where and in which context
किस सिचुएशन में वो वर्ड यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जब आपको ये पता रहता है, आप बेस्ट फिट ऑप्शन ही टेक्स्ट में से यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी actually helps a lot, and you should keep on adding more vocabulary words to your list before preparing for the test, as you're preparing for the test. So you should keep on adding new range of vocabulary into your list. Next, contextual understanding. Contextual understanding means test takers need to comprehend the surrounding sentences or the overall theme of the passage to ensure that the words they choose to complete the sentence align well with the intended meaning. That means जब हम किसी भी सेंटेंस के आंसर को फिल कर रहे हैं, तो उसका आंसर कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो ओवरऑल थीम है वो पैसेज का वो इंटैक्ट रह रहा है, इट इज़ मैचिंग विद द ओवरऑल थीम, एंड यू आर चूजिंग द राइट वर्ड्स विच आर मेकिंग सेंस, विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट, and which are goes by the logic of the passage. Next, understanding the context helps in selecting words that not only fit grammatically but also make logical sense within the given text. That means जब आपको context पता होता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस तरीके की बात हो रही है, किस सेंस में बात हो रही है इस टेक्स्ट के अंदर और इस पैसेज के अंदर, तो आप उन्हीं वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं दैट मेक्स द बेस्ट लॉजिक, जो लॉजिकली भी उसके साथ करेक्ट हैं, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हैं. सो हैविंग कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. द अनदर स्किल यू नीड टू लर्न इज़ पैराफ्रेजिंग. Paraphrasing skill means being able to say the same thing using different words. It's like expressing an idea in another way while keeping the meaning the same. That means हम क्या करने वाले हैं, हम सेम जो आइडिया है वही रख के डिफरेंट वर्ड्स चूज करके उस सेंटेंस को लिखने वाले हैं. दैट मीन्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. जो मीनिंग है वो सेम रहने वाला है, बट द वर्ड्स विल चेंज. इन सेंटेंस कंप्लीशन टास्क्स इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड and fill in the gaps even if the words in the passage are changed a bit. That means mostly क्या होता है सेंटेंस कंप्लीशन टास्क में, जो सेंटेंसेस दे रखे होते हैं उसके वर्ड्स चेंज किए गए होते हैं, उसकी जो लाइंस है वो थोड़ी चेंज की गई होती हैं, और पैसेज में वो डिफरेंट तरीके से लिखा होता है. सो इट एक्चुअली हेल्प्स. अगर आपको पैराफ्रेजिंग करनी आती है तो आपको पता रहता है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनका मतलब तो सेम है बट द वर्ड्स आर बिट डिफरेंट. सो paraphrasing actually helps a lot to find the right answer, to locate the right answer. Let me show you an example. So this is an example. ये original sentence है जो passage के अंदर दे रखा है. The company experienced a significant increase in profits last year. और जो paraphrased sentence है वो क्या है, last year the company saw a substantial rise in its earning. So दोनों sentences का मतलब बिल्कुल same है. You can easily say they have changed the sentence, they have changed some words, but the meaning is same. Words क्या क्या change किए गए हैं? What they have done? They have replaced the word experienced. जो experienced word को क्या कर दिया गया है, उन्होंने replace किया है saw के साथ. Experience मतलब कोई चीज़ को witness करना, experience करना. saw मतलब देखना. That means दोनों ही similar चीज़ें हैं, दोनों का मतलब same ही है. इसमें क्या है, दूसरा वर्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है, बढ़ावा हो गया है उनके प्रॉफिट्स में. सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज की जगह यहाँ पे द वर्ड दे हैव यूज्ड इज सब्सटेंशियल राइज. राइज का मतलब भी बढ़ना ही होता है, सब्सटेंशियल मतलब सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स ऑफ द प्रॉपर क्वांटिटी, जितना वो मतलब अच्छे से उनका इंक्रीज हो गया है, काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है. सो दे हैव मेंशनड इट सब्सटेंशियल राइज. नेक्स्ट दे हैव रिटन प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स को किससे रिप्लेस किया गया है, प्रॉफिट्स को रिप्लेस किया गया है अर्निंग्स के साथ. प्रॉफिट्स एंड अर्निंग्स बोथ आर सिमिलर थिंग्स. सो दे हैव चेंज द वर्ड्स बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम. दैट मीन्स द सेंटेंस इज पैराफ्रेज्ड. ये जो सेंटेंस है दूसरा उसको पैराफ्रेज किया गया है. द नेक्स्ट स्किल यू नीड टू लर्न इज स्कैनिंग. स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग मेरी पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा. यू कैन गो फॉर डिटेल इन माई प्रायर वीडियो अबाउट स्कैनिंग एंड स्किमिंग. सो दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द
रीडिंग टेस्ट जो हर एक क्वेश्चन टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं. स्कैनिंग इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक डिटेल एंड यू आर लुकिंग फॉर इट वेरी क्विकली. बहुत जल्दी से आप स्कैन करते हैं पूरे टेक्स्ट को, उस डिटेल को, उस वर्ड को ढूंढने के लिए. सो यू कैन ईजिली सी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट. द सेंटेंसेस The ancient city of Machu Picchu was built by the Inca Empire in the 15th century. This is the original sentence in a passage. और जो हमारा question है उसमें क्या है? The ancient city of Machu Picchu was constructed by the Dash Empire in the Dash century. तो जब ये question आया है तो हमें मालूम है कि हमें क्या चीज़ ढूंढनी है, right? So what we do is we scan the whole passage and we try to look for those lines जहाँ पे माचू पिच्चू की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है. माचू पिच्चू की कंस्ट्रक्शन या कहाँ पे कैसे बिल्ट हुआ है, किसने बिल्ड करा है, कब किया है, इसके बारे में बात हो रही है. सो हम अपनी स्कैनिंग स्किल्स को यूज़ करके वी विल गो टू दैट पार्ट एंड वी कैन ईजिली सी कि जो इसका आंसर है वो इंका और 15th होगा इसका आंसर. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ योर स्कैनिंग स्किल्स टू लोकेट द आंसर वेरी क्विकली. यू लुक फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड इन द टेक्स्ट, you find it and then you read it very thoroughly to get the right answer. Next, the skill you need to have is have proper knowledge regarding the grammar, and you need to have elimination skills as well. For example, the grammar, this skill requires understanding basic grammar principles to ensure that the chosen words are grammatically appropriate and logically fit into the sentence. दैट मीन्स जब भी हम सेंटेंस में वो वर्ड्स को फिल करते हैं यू मेक श्योर कि वो वर्ड्स ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कई बार अ लिखा होता है हमारे गैप से पहले, तो अ लिखा हुआ है दैट मीन्स जो वर्ड आगे आएगा इट्स गोना बी सिंगुलर. एंड लिखा हुआ है. सो यू यूज़ दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स टू नो व्हाट इज़ द राइट आंसर. सो ऐसे ही क्या होता है, यू यूज़ द एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल. तो हमें पता है कि आगे ए लिखा हुआ है, अगर किसी वर्ड के आगे गैप के आगे ए लिखा हुआ है तो प्लूरल तो नहीं आएगा हमारे आंसर में. इससे क्या होता है कि जो हमें लग रहा है कि आंसर हो सकता है बट मालूम है कि वो प्लूरल है तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं. इससे क्या होता है, वी आर लेफ्ट विद द right choice, we are left with the right answer. So elimination also works like magic whenever you are solving sentence completion questions. The next technique you can use while answering the sentence completion task is reading comprehension. ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो मोस्ट ऑफ द रीडिंग टेस्ट में आपको यूज़ करनी ही पड़ती है. दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू स्किम रीड द पैसेज. स्किमिंग करनी आनी चाहिए, ओवरऑल थीम निकालनी आनी चाहिए आपको कि ये पैसेज किस बारे में है, मेन पार्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, ताकि जो आपका सेंटेंस दे रखा है उसके आंसर को फाइंड करने के लिए आप उसी लोकेशन पे जाके उस पार्ट पे जा कर के उसको ढूंढ पाए. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. These sentence for the sentence completion task, that means you should be able to understand the passage, grasp what the passage is about by skimming, find information, quickly locate details related to the gaps. जल्दी से हम इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं उन पार्ट्स पे जाके. नेक्स्ट, गेट द कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. फिर हम उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैसेज में किस बारे में एक्चुअली कैसी कितनी ब्रीफली इस बारे में बात हो रही है. एंड देन यू यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी नो. फिर हमें जो ऑलरेडी सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पैराफ्रेजिंग, वी ग्रामर, वी यूज़ ऑल ऑफ इट टू चूज़ द राइट आंसर. In simpler terms, it's about understanding what you read, finding the right paths, and using your knowledge to complete the sentences accurately. So at the end of the day, अगर आपको reading comprehension आता है, then only you will be able to solve the IELTS reading test more appropriately. Now, the section is important tips. Tips क्या है? सबसे पहली tip है check the instructions to know how many words to write for each answer. That means सबसे पहले हम instruction check करेंगे कि word count limit क्या है. If we can use different words or must use the same ones from the text, कि हम different words हमें use करने हैं. कई बार हमें sentence completion task के नीचे अलग से words भी दिए गए होते हैं जिससे हमें fill करना है उन gaps को.
कई बार होता है कि उन्होंने पैसेज में से ही फिल करने के लिए बोला है. सो यू शुड रीड कहाँ से हमें वो वर्ड्स यूज़ करने हैं और फिल करने हैं. नेक्स्ट, first read the sentences. Don't start reading the passage immediately. You need to understand what information you are searching for. That means हमें सबसे पहले अपने questions को पढ़ना है. You need to read all the sentences with the gaps in, और ताकि आपको पता हो कि आपको किस चीज़ को ढूंढना है, what you have to look for in the answers. And then answers in the text follow the order of the complete sentences. लुक फॉर देम इन द सेम ऑर्डर. दैट मीन्स जो टेक्स्ट में आंसर्स दे रखे हैं वो सेम ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में आपके सेंटेंसेस, जिस ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस लिखे गए हुए हैं. सो यू हैव टू लुक फॉर देम इन द सेम ऑर्डर. द नेक्स्ट स्टेप इज ensure completed sentences are grammatically correct. If not, it's the wrong answer. That means जब आप अपना आंसर ढूंढ लेते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपने लिखा है वर्ड वो ग्रामेटिकली भी उस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है, करेक्टली वो फिट हो रहा है ग्रामेटिकली भी. अगर नहीं हो रहा है, यू कैन लुक फॉर दी अनदर आंसर बिकॉज डेफिनेटली इट्स द रॉन्ग वन. नेक्स्ट, guess what kind of word is missing when you study the sentences. It will help you find the answer faster. That means जब आप अपने sentences रीड करते हैं स्टार्टिंग में, यू नीड टू लुक फॉर कि इसके अंदर जो डिटेल ढूंढी गई है वो किस तरह की डिटेल है. कोई नाम पूछा गया है, कोई वर्ड पूछा गया है, कोई नंबर पूछा गया है. दैट मीन्स यू हैव टू लुक फॉर लाइक इट्स अ नाउन, इट्स गोना बी अ वर्ब, एडवर्ब, और व्हाट काइंड ऑफ आंसर इट्स गोना बी. जब आप ये पता कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है आंसर को ढूंढना. नेक्स्ट, क्विकली सर्च टू लोकेट आंसर्स, देन रीड क्विकली केयरफुली टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर. दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आप कोई सारे सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं, जब फर्स्ट आंसर को ढूंढना है तो आपने क्विकली लोकेट करना है कि ये कहाँ मिल सकता है. देन रीड इट केयरफुली, देन रीड दैट पार्ट वेरी केयरफुली टू फाइंड द राइट आंसर. दैट मीन्स यूज योर स्कैनिंग एंड स्किमिंग स्किल्स टू लोकेट द आंसर. दैट मीन्स किस जगह पे होगा, और फिर राइट आंसर को ढूंढने के लिए हम उसको केयरफुली रीड करेंगे. दैट मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नेक्स्ट, कंटिन्यूसली कंसिडर सिनोनियम्स एंड रीफ्रेजिंग. हमने जब भी हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, हमने सिनोनियम्स और रीफ्रेजिंग, दैट मीन्स पैराफ्रेजिंग को बार बार कंसिडर करना है कि ये कहाँ पे हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि हम अपने आंसर को जल्दी ढूंढ सकें. सर्च फॉर सिमिलर मीनिंग्स, नॉट जस्ट आइडेंटिकल वर्ड्स. हमें ये नहीं करना कि सेम वर्ड लिखा होगा उस पैसेज में, जो सेंटेंस में लिखा हुआ है तभी वहाँ आंसर होगा. ऐसा नहीं होता है. देयर मे बी अ चांस कि वहाँ पे उसका सिनोनियम लिखा गया है या उसको पैराफ्रेज करके लिखा गया है, उसका मतलब वही है बट डिफरेंट वर्ड यूज़ हुआ है. दैट मीन्स आपका आंसर वही होगा. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग द सेंटेंसेज एंड द टेक्स्ट, मेक श्योर यू आर नॉट लुकिंग फॉर आइडेंटिकल वर्ड्स बट द सिमिलर वर्ड्स यू हैव टू लुक फॉर. सिमिलर वर्ड्स मतलब जिनका मीनिंग लगभग सेम है बट वो वर्ड्स आइडेंटिकल नहीं है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैजिक स्ट्रैटेजी, द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, and use this strategy in your sentence completion questions to answer them in the right way. So the first thing you will do when answering these questions is read the instructions carefully. आप अच्छे से उसको read करेंगे instructions को. Next, you will read the sentences with gaps and try to understand their meaning. फिर हम sentences को read करेंगे और उनके meaning को समझने की कोशिश करेंगे. और मीनिंग को समझने के बाद वी विल ट्राई टू गेस द टाइप ऑफ द मिसिंग वर्ड. हम टाइप को गेस करेंगे कि जो मिसिंग वर्ड है ये किस तरीके का हो सकता है. ये डेट होगी, ये नंबर होगा, ये नेम होगा, ये वर्ब होगा. वी विल ट्राई टू गेस इट. समटाइम्स यू कैन मेक एन एडुकेटेड गेस. Next, underline important words like names, numbers, dates or places from the sentences. हम जब sentences को read करेंगे, we will underline the important keywords such as names, numbers, dates or places from the sentences to search for in the text, ताकि हम text को उसमें से ढूंढ सकें. Think about similar words as you do this. हमने क्या करना है, जब हम उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसके सिमिलर कीवर्ड्स को भी सोचने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है जो ये वर्ड लिखा है इसका सिनोनियम हमारे टेक्स्ट में हो सकता है. सो वी विल ट्राई टू गेस इट while reading the sentences. Next, scan the text for the keywords from the first
सेंटेंस। दैट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम पैसेज में लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कीवर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑलवेज स्टार्ट हेयर एज आंसर विल बी इन ऑर्डर इन द टेक्स्ट। दैट मीन्स पहले जो सेंटेंस है उसी के कीवर्ड्स को ही हम अपने टेक्स्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑलवेज इन द ऑर्डर। द नेक्स्ट स्टेप इज keywords in the text will guide you to where the answer is. That means जब आप टेक्स्ट में उन keywords को locate कर लेंगे, you will know the answer is gonna be there, and then you read that part of the text carefully. जब आप locate कर लेते हैं उन keywords को अपने text के अंदर, then you have to read that part of the text very carefully to find the right answer. The text might say things in a different way. हो सकता है कि जो text है लिखा गया है जहाँ पे आपको वो keywords मिले हैं दे आर रीफ्रेज्ड, पैराफ्रेज किया गया है, या फिर उन्होंने सिनोनियम्स यूज़ किया है. सो अंडरस्टैंड द मीनिंग टू फाइंड द राइट इन्फॉर्मेशन. तो आपको उसका मतलब अच्छे से जानने की कोशिश करनी है टू फाइंड द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द वर्ड्स नीडेड फॉर द आंसर. दैट मीन्स आपको वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो वर्ड्स आंसर में फिल हो सकते हैं. When you find the answer, जब आपको आंसर मिल जाता है, write it in the answer sheet. Make sure it fits in the sentence correctly as per grammar and has the right spelling. फिर आप उसको fill करेंगे and you need to make sure कि वो grammatically correct है और spelling mistakes आपने उसमें नहीं की है. Then you have to repeat this process for the next sentences, 3-4 sentences, whatever is given in your question paper. So you need to be very careful. If a sentence is very hard and you cannot find the answer to it, you need to move on to the next question. And when you have some time left, when you are done with whole of your test, you can try answering or guess the answer for it. So if a sentence is too hard, make a guess and move on. Don't spend too much time on the one question and miss easier ones later. Let's use this effective strategy in this sample question. So as you can see, this is the passage from an actual reading test, and these are the sentences with the gaps for you to find answers for. So for the first step, you have to read the instructions very carefully. हम बड़े ध्यान से अपनी instructions पढ़ेंगे. Instructions पढ़ते हुए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है. First thing is word count limit. Word count limit here is 3 words. That means हमारा जो आंसर है वो 1 word का भी हो सकता है, 2 words का भी हो सकता है और 3 words का भी हो सकता है. Next, we have to see where we have to look for the answers. हमें पैसेज में से ढूंढने हैं या हमें अलग से words दिए गए हैं इसको fill करने के लिए. So we have to get our answers from the passage only. That means हम जो passage में दिए गए words हैं उन्हीं को use करके अपने gaps को fill करेंगे. Next step is to read the sentences with gaps and try to understand their meanings. What we are going to do is we are going to read these sentences first. Before reading the text, हम text को पहले नहीं पढ़ेंगे. हम सबसे पहले अपने questions को ही read करेंगे और इनमें से जो भी important keywords हैं उनको underline करेंगे साथ में, and we will try to guess the meaning of the sentence and we will try to guess the type of the word we are looking for. कि हमने ये भी guess करना है कि किस तरीके का जो आंसर है हमें ढूंढना है, किस तरीके के word को हमें ढूंढना है while reading the sentence. So let's read it. First sentence, 2 ingredients used to make paint found in cave were. So हमें 2 ingredients के बारे में पता करना है text में से जो कि पेंट बनाने में यूज़ हुए थे और वो केव में पाए गए थे. सो वी हैव टू लुक फॉर 2 nouns बेसिकली इन आवर टेक्स्ट. और हमने अपने जो कीवर्ड को क्या है अंडरलाइन भी किया है. एंड द थर्ड स्टेप इज़ वी नीड टू गेस द टाइप ऑफ द मिसिंग वर्ड. लाइक वी डिड, हमने गेस कर लिया है कि हमें एक नाउन को ढूंढना है. 2 वर्ड्स हैं जो कि कोई इंग्रेडिएंट है उसका नाम होगा. 2 इंग्रेडिएंट्स के नाम को हमें ढूंढना है अपने टेक्स्ट के अंदर. we have guessed it already, and now we will underline the important keywords in the sentence as we have underlined it here. हमने उसको underline भी कर लिया है. जो हमारे important keywords हैं उसको underline किया हुआ है.
नेक्स्ट हम अपने टेक्स्ट में भी इस अंडरलाइंड वर्ड को क्या करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इससे मिलता, इसका सिमिलर मीनिंग वाला कोई वर्ड हमारे टेक्स्ट के अंदर है या नहीं है. सो वी विल ट्राई टू लोकेट इट वेरी क्विकली. हम स्कैन करेंगे जल्दी से, और स्कैनिंग के बाद एज यू कैन ऑलरेडी सी I have underlined raw materials and it conveys the same meaning. Raw materials और ingredients का मतलब same ही होता है. So I can see कि यहीं पे मुझे मेरा answer मिल सकता है. And you have to start looking for the first answer in the beginning of the passage only, because order में ही answers होते हैं. जैसे आपके सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपको अपने आंसर्स भी मिलेंगे टेस्ट में. सो यू हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट आंसर इन द बिगिनिंग ओनली. नेक्स्ट जो कीवर्ड है टेक्स्ट में, जैसे कि रॉ मटेरियल है, इससे आपको पता लग जाएगा कि वेयर योर आंसर इज. देन यू हैव टू रीड दैट पार्ट वेरी केयरफुली टू फाइंड द आंसर. ऑल द मटेरियल्स वर डिस्कवर्ड एट द सेम साइट एंड दे इंक्लूडेड एन एरे ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सैम्पल्स ऑफ बोन एंड चारकोल. सो मैं इसी से पता लगा सकती हूँ कि इसका आंसर बोन एंड चारकोल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी यही मेंशन किया गया है कि इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेंट बनाने में यूज़ हुए थे, केव में पाए गए थे, और इन्होंने भी यहाँ पे यही बात की गई है. ऑल ऑफ द मटीरियल्स वर डिस्कवर्ड एट द सेम साइट, मतलब कि वहाँ पाए गए थे, डिस्कवर किए गए थे. एंड दे इंक्लूडेड एन एरे ऑफ रॉ मटीरियल्स, इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर, इंक्लूडिंग बोन्स, सैम्पल्स ऑफ बोन एंड चारकोल. इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर बोन एंड चारकोल हो सकता है. सो as you can see, I have underlined the key important keywords for second sentence as well: tools, make, paint, and for the third as well, scientists have work out how. So we have underlined the important keywords and we will try to look for the similar words in the text. तो tools का जो similar word मुझे दिखाई दे रहा है स्कैन करते हुए, that is equipment. equipment का मतलब भी tools होता है. So they have used a synonym over here. make का मतलब produce करना होता है, so producing they have used. paint का मतलब pigment होता है, so they have used pigment over here. So I can see कि यहीं पे मुझे मेरा आंसर मिल सकता है, सेकंड का आंसर भी मिल सकता है. और आई कैन ट्राई टू गेस द टाइप ऑफ द वर्ड. इसका भी मैं गेस कर सकती हूँ कि यहाँ पे भी नाउन ही आएंगे, टूल्स के नाम आएंगे यहाँ पे. थर्ड में साइंटिस्ट की जगह यू कैन सी दे हैव मैंशनड हेंसलवुड एंड हिज टीम. उनके नाम मेंशन किए गए हैं टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे उनके लिए साइंटिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है. They used the dash on the equipment to help work out how the paint was made. Work out how the paint was made, that means कि ये पता लगाया उन्होंने कि कैसे पेंट बनाया गया था. और यहाँ पे लिखा गया है were able to deduce the process. मतलब deduce का मतलब भी यहाँ पे यही है कि पता लगाया गया कि किस प्रोसेस से पेंट को बनाया गया था या ऑशर मिक्सचर को बनाया गया था. So you can see here I will find the answer for third sentence. So I will try to look for the answers in here. I will read it very carefully to find my answers. Now यहाँ पे आपने देखा होगा कि the text might say things in a different way. ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके की sentences, words या phrases यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे अलग किए गए हैं, but मतलब दोनों का सेम ही है. There are different words used. सच एज़ इंग्रेडिएंट्स की जगह रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है हमारे टेक्स्ट में, टूल्स की जगह इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, मेक की जगह प्रोड्यूस यूज़ किया गया है, पेंट की जगह पिगमेंट यूज़ किया गया है, साइंटिस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे हेंशलवुड एंड टीम यूज़ किया गया है, वर्कआउट हाउ की जगह यहाँ पे डिड्यूस यूज़ किया गया है. सो दे हैव यूज डिफरेंट वर्ड्स बट द मीनिंग आर सेम. सो वी नीड टू लुक फॉर द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज आई हैव ऑलरेडी डिड एंड अंडरलाइंड. मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं. नाउ हमने फर्स्ट का आंसर ढूंढ लिया था. वी विल ट्राई टू लुक फॉर द सेकेंड आंसर. तो यहाँ पे लिखा गया है 2 एग्जाम्पल है टूल्स की जिनसे यूज टू मेक द पेंट, जैसे पेंट बनाया गया था और वो केव में ही मिले थे. और यहाँ पे भी यही दे रखा है, ऑल ऑफ द मटीरियल्स वर डिस्कवर्ड एट द सेम साइट एंड दे इंक्लूडेड एन एरे ऑफ रॉ मटीरियल्स इंक्लूडिंग सैम्पल्स ऑफ बोन एंड चारकोल as well as pigment producing equipment such as grindstones and hammerstones. So as I can already see, the answer is gonna be grindstone and hammerstones because यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है paint making tool. इसका मतलब यही है पेंट मेकिंग टूल, और यहाँ पे भी यही पूछा गया है पेंट मेकिंग
tool. So I will answer it grindstones and hammer stones. Next, the scientist used the dash on the equipment कि इक्विपमेंट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको यूज़ करके उन्होंने पता लगाया कि किस तरीके से पेंट बनाया गया. और यहाँ पे लिखा गया है जजिंग बाय द इक्विपमेंट विच शोज़ साइंस ऑफ वियर, कि इक्विपमेंट के ऊपर साइंस ऑफ वियर थे. साइंस ऑफ वियर का मतलब होता है कि वो कोई चीज़ जिसको यूज़ किया गया था, जिससे पता लग रहा था कि ये यूज़ हुई चीज़ है. Henselwood and his team were able to deduce the process used to produce the washer mixture, कि ये चीज़ उन्होंने जब साइंस ऑफ वियर देखे तो they were able to work out कि कैसे उन्होंने पेंट बनाया गया होगा. सो यहाँ पे द आंसर इज़ गोना बी साइंस ऑफ वियर. तो अब हम देखेंगे कि जो ये हमारे 3 आंसर्स है आर दे ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट. सो वी नीड टू फाइंड दैट ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है. सो फर्स्ट आंसर इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्पेलिंग्स भी करेक्ट हैं और इंस्ट्रक्शंस के जैसे ही कंप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो यहाँ पे भी यही लिखा है 1 वर्ड है. सो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही है, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स. नेक्स्ट भी 1 वर्ड है, ये भी 1 वर्ड है, स्पेलिंग भी ठीक है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है. थर्ड में 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, सो वी आर फ्री टू यूज़ 3 वर्ड्स फॉर द आंसर. तो ये हमारा जो आंसर है ग्रामेटिकली भी ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वाइज भी ठीक है, और लॉजिकली भी इसका सेंस बन रहा है कि साइंटिस्ट ने साइंस ऑफ वियर को यूज़ किया जो कि इक्विपमेंट के ऊपर थे, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है. सो वी वर एबल टू फाइंड द राइट आंसर एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द सेंटेंसेस, फॉर द नेक्स्ट सेंटेंसेस, जब तक हम पूरे ख़त्म नहीं कर लेते हैं. एंड इफ़ यू आर स्टक इन बिटवीन, अगर आप बीच में कहीं आपको आंसर नहीं मिल रहा है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम, गेस द आंसर एंड मूव ऑन. So in conclusion, what you can do to answer sentence completion task is you need to practice scanning and skimming. You need to learn how to paraphrase the sentences. You need to have good vocabulary range, and you need to work on your comprehension skills. You need to understand your contextual understanding. You have to work on all of these to master sentence completion questions. Once you do it and you practice it with the effective strategy I have told you, I am quite sure you will be able to answer all of them correctly and you will score 8+ bands in your IELTS reading test. Thank you so much for watching, and subscribe my channel to watch more videos for IELTS test preparation. Thank you so much.